Okay, so good morning everyone and welcome in today's class. So till yesterday means in the last 2 days what we discussed specifically on the CMDB, that what is CMDB, what is CI, what is asset, and yesterday we tried to create one CI of the computer class. Okay, and today we are going to work on the assets. Okay, that how the assets created automatically. So few things you need to be think from the wider perspective now. Okay, don't just think that I created just one computer CI and it is only one asset is there. So multiple hardware CIs we will create, or I request you guys to create, and then we will see that how the asset has been created for the same. Because if I say in my home, my refrigerator is an asset. At the same place, that is a CI as well. It means CI and asset have something in the common, right? If I take example, I am a father as well and I'm a son as well. So many things, many attributes are common between those, right? My name, first name, last name, my gender, my age. These are the common between if I am a father or I am a son. Okay, so same thing goes for the CI as well. Okay, so let me take that part. Computer, right? Yesterday we created a computer CI, right? Computer base item, computer, and we will see that what is my CI. Okay, so that was yesterday which we created first Dell Inspiration V101. Okay, and if you notice this thing that a asset has been created automatically, this one is the asset, right? Today I'll be working, or we are discussing specifically on the asset part. Okay, click here, open a record in the new window. Okay, so it's open in the window. Okay, now you see, if you have a refrigerator in your home and it is not working properly, you call to mechanic and you give some information to that mechanic. What is the category of your refrigerator? What is the model of your refrigerator? What is the serial number of your refrigerator, right? Either you provide this information from the asset perspective or the CA perspective. Thing will be the same. Okay, so if I go here and will open this thing. Okay, so display name, model, category, model, and quantity, configuration item. And if I go here, manufacturer, model ID, my asset will contain a model category as well. Why? Because maybe in my kitchen, I have a refrigerator, I have a microwave oven. Both are falling in the category of a kitchen, but both model can be different, manufacturer can be different, can be same, can be different. So this is another field added on the asset part. Okay, another important point you need to be see that this is the base table ALM underscore hardware. ALM underscore hardware is the base table for the assets. All assets will be recorded in this particular table. ALM underscore hardware, but in CI, this is not the case.
If I create a CI for computer, it will go in the computer class. Let me create a CI for the server. Because server can be a hardware for me. If I install the physical server, it will be hardware for me. And I'll click on the all. And let me create a new server. Okay. See. Name first Dell server. Category as a resource version 1.0. Managed by support by I'm leaving it. Okay. Because this is an application server. Maybe this is not a hardware actually. Right? Let me click on the save. Let's see any asset credit or not for this one. Show XML. Control F. Asset. Asset tag नहीं है यहाँ पर. It means ServiceNow considering this as a software, not a hardware. Let me go and check something more here. This under base servers. And now I click on this. See, under base item, this is a server which ServiceNow considering as a hardware. And you see, the class table has been changed here. CMDB underscore CA underscore server. Let me fill some detail here. First, Dell server, company, ACM Africa, asset tag. I'm just putting a random number. Manufacturer, Zio Group, model ID, Dell assigned type, leaving it. Let me click save. This is my asset. Let me open this record. The purpose of creating this and showing this asset is basically to tell you that the table for hardware is always the same. ALM underscore hardware, but table for CI will be always changed. As per the class, the table for the CI will be changed. Okay. Now come to the asset part. Journal information. Okay. When I say that there are common attributes in a CI and in a asset, because ultimately वो एक ही है, सिर्फ उसको कॉल करने का तरीका अलग अलग है, उसको यूज करने का तरीका अलग अलग, अदरवाइज वो एक ही आइटम है. रेफ्रिजरेटर मेरे लिए एसेट है क्योंकि मेरे घर में है, बट दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए एक सीआई है क्योंकि उसको ठीक करना है, उसके लिए, क्योंकि उसके घर में नहीं है, उसके लिए एसेट नहीं है, वो मेरे लिए एसेट है वो. ठीक है. सो दीज 5-6 जो the tabs given by ServiceNow as a out of the box. Okay, asset tag, it come from the this place only. Let me open my computer. Okay, because I want to show you one more thing, interesting thing. Think from the business perspective. Okay. This is my asset tag, right? If I change something here in my asset, my CI asset tag will be changed automatically. Let me try to do that part. And just click on the save. Go here. This has been changed, right?
But how does this useful, Atul? Yes, wait. I'll come to that point. I come to that point. Okay. So this is a one thing. Okay. Second thing, and now just hold for some time because the question which you have in your mind, I have an answer in the coming, maybe not today, but tomorrow definitely will be there. Sure. Okay. Second point, because these things are specifically defined in ServiceNow. The state of a asset and the state of a CI. Suppose you purchase a new refrigerator, okay, and you installed. If I call you and say, hey, Uma, how's your refrigerator? You say, बढ़िया चल रहा है. Yes, तेजल एंड शिल्पी यही बोलेंगे ना अगर इफ आई कॉल समवन, अरे कैसा चल रहा है तुम्हारा फ्रिज? बढ़िया चल रहा है. It means that asset is in use. Agree on that part? And if I talk about the status, operational status from a CI perspective, हाँ अतुल ऑपरेशनल है, वो काम चल रहा है, उस पर अच्छा चल रहा है वो, ठीक है. These are the two mechanism to track two different things, but actually they are the one. Don't be confused. मैंने एक फोन परचेज किया एंड आई एम यूजिंग इट. उस फोन का स्टेट क्या है? यूज में है, इन यूज है, राइट? लेकिन अगर वो सीआई बन जाएगा तो क्या वर्किंग है या नहीं है? दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशनल स्टेटस. ठीक है, ये जो तीन आपको टैब्स दिख रहे हैं, इंस्टॉल स्टेटस, हार्डवेयर स्टेटस एंड फील्ड मैपिंग सीआई एसेट, ये पर्पसफुली मैंने बनाए हैं आपको दिखाने के लिए. यहाँ पर सीआई का ऑपरेशनल स्टेटस मैटर करता है. आपने एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया, इन यूज है. अगर आपका सर्वर इन यूज है, इसका मतलब अगर आपका एसेट इन यूज है, उसका ऑपरेशनल स्टेटस विल बी ऑपरेशनल होगा वो. अगर नॉन ऑपरेशनल तो वो इन यूज नहीं है. मेरा पुराना फोन पड़ा है यार, इन यूज नहीं है लेकिन पड़ा हुआ है मेरे पास, इट्स ए नॉन ऑपरेशनल. नहीं है, रिपेयर प्रोग्रेस में, रिपेयर में गया हुआ है मेरे लिए. मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे घर आ गया, पैक है, अनपैक नहीं किया, फिटिंग नहीं हुई, दैट इज रेडी. एसेट मेरे घर पे है बट इट इज रेडी टू यूज नाउ. मैंने अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया उसको. रिटायर्ड, अरे यार वो पुराना फ्रिज खराब हो गया था, मैंने उसको साइड के कमरे में डाल दिया, स्टोर रूम में डाल दिया. ठीक है, क्योंकि एक सीआई के ये ऑपरेशनल स्टेटस होते हैं, लेकिन एक हार्डवेयर के ये स्टेट होते हैं, जैसे इन यूज, ओके, ऑन ऑर्डर. आपकी मम्मी ने बोला, उमा मुझे एक नया फोन चाहिए. ठीक है मम्मी, मैं ऑर्डर करता हूं. आपने ऑर्डर कर दिया, दुकानदार ने चेक किया, नहीं मम्मी रुको मैं देखता हूँ, मेरे पास शायद 2-3 पुराने फोन पड़े हैं, अगर कोई अच्छा सा है तो मैं आपको देता हूँ, इन स्टॉक में चेक करता हूँ. मेरा ऑर्डर रास्ते में है, इन ट्रांजिट, मैंने ऑर्डर किया, इट इज कमिंग टू माय प्लेस, इन यूज. मम्मी वो फोन यूज कर रही है. इन मेंटेनेंस, अरे नहीं एक्चुअली वो फोन का थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करना था, इसलिए मैंने आपका फोन ऑफ किया थोड़ी देर के लिए. रिटायर्ड, नहीं होगा मम्मी, बढ़िया नहीं है, छोड़ दो. मिसिंग, मेरे पास एक बुक है पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया, मिसिंग है. एसेट है आपके पास लेकिन आपको मिल नहीं रही वो एसेट अभी. हम कहते हैं ना बुक्स आर ऑलवेज एसेट फॉर मी, वो चीज. और बिल्ड, जब मैं अपने थीसिस बिल्ड करता हूँ, अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाता हूँ, दैट इज अ बिल्ड, आई एम बिल्डिंग इट. इट इज नॉट इन यूज, इट इज नॉट रेडी, बट आई एम बिल्डिंग दैट एसेट. जब एसेट बिल्ड हो जाएगा उसके बाद ही वो ऑपरेशनल होगा या वो होगा नॉन ऑपरेशनल में जाएगा, जैसे भी रहेगा. ठीक है. The main point which I want to tell you here, number one, if I change any parameter here, if I change any attribute in my asset, that will impact my CI as well. Number one point, thumb rule.
Second point, if I change the state, and substate of my asset, it will impact my hardware, sorry, it will impact my CI का ऑपरेशनल स्टेटस. अगर आपका एसेट मैं रिटायर्ड कर दूं तो क्या आपका CI इन ऑपरेशनल में होगा कभी? हाँ या ना? इफ आई पुट योर फ्रिज इन द रिटायर मोड और मैं आपको कॉल करके पूछता हूँ अरे फ्रिज कैसा चल रहा है, विल यू से कि नहीं अतुल चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है? यू विल नेवर से, बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. एग्री? Yes. 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 तेजल, Yes, ईश्वरी, sir. Yes, sir. शिल्पी, Yes. ओके, ठीक है. और तीसरा क्या है? हार्डवेयर स्टेटस. बेसिकली जो मेरा हार्डवेयर है उसका स्टेटस क्या है. देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. CI का अपना स्टेटस होता है और हार्डवेयर का अपना स्टेटस होता है. अगर आप किसी शॉपकीपर को कॉल कर रहे हो, वो पूछेगा मैडम आपका फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले ये बताओ. हाँ भैया चल रहा है, ठीक है. उसने CI के पर्सपेक्टिव से पूछा. लेकिन अगर मैं हार्डवेयर के हिसाब से आपको पूछूं, अरे ओमा आपका फ्रिज कैसा चल रहा है? बस यार वो मेंटेनेंस में रहता है आजकल. चल रहा है मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेशनल है, बट एक्चुअल में वो जो मेरा एसेट है वो मेंटेनेंस बहुत खाता है मेरी ये. ठीक है. तो जो ये 3 टैब्स आप देख रहे हैं, इंस्टॉल स्टेटस, हार्डवेयर स्टेटस और फील्ड मैपिंग CI एंड एसेट, ये तीनों वाइडली बहुत ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है. नाउ आई कम टू उमा योर पॉइंट कि अतुल इसका बेनिफिट क्या है कि मैं एसेट अगर यहां चेंज कर रहा हूं तो CI में चेंज होगा, उसका बेनिफिट क्या है? आई गेस यू गेट योर आंसर. अगर नहीं है तो फिर दोबारा पूछो क्या क्वेश्चन है प्रॉपरली, या उसके ऊपर कुछ एडिशंस है भी आपके, देन आई विल आंसर इट. No, look. Sorry, no, Atul, it's clear. इट्स क्लियर, राइट? Don't consider asset and CI two different things. CI is just a logical name of that asset और कुछ भी नहीं है. CI का फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है ये जरूरी नहीं है, लेकिन एसेट है वो जरूरी होना चाहिए उसका. ठीक है. अब देखो, अगर आपने कोई एसेट परचेज की, ठीक है, उसको आप असाइन टू बी करते हो. जैसे अगर किसी फैमिली में 3 लड़के हैं और तीनों की शादी हो जाती है और तीनों की वाइफ को फ्रिज मिलता है या कार मिलती है, सो एवरीवन विल से बॉस ये कार तो मेरी है. ऐसा नहीं होगा कि किसी की वाइफ किसी और की वाइफ की बोलेगी नहीं ये कार मेरी है. दैट इज असाइन टू, मैनेज बाय. जिसके हस्बैंड को वो कार मिली है वही उसको मैनेज करेगा, वही उसको ऑन करेगा. इन शॉर्ट, अगर मैं इन तीनों का पर्पस बताऊं, IT वर्ल्ड में बहुत बड़ा ये कंसेप्ट चलता है. इफ आई गॉट ए लैपटॉप फ्रॉम माई ऑफिस, तो लैपटॉप के एसेट में वो यहां नाम लिखेंगे अतुल ग्रोवर का. भाई किसको साइन की है? अतुल ग्रोवर को. इसको मैनेज कौन करेगा? मैनेज मतलब कि अगर इसमें कुछ पैचेस अपग्रेड करने हैं, इसमें कुछ हार्डवेयर अपग्रेड करना है, तो मैं बोलूंगा ये प्रोक्योरमेंट टीम है वो मैनेज करेगी सारा का सारा. इसको ऑन कौन करेगा? IT टीम ऑन करेगी. मान लीजिए कल वो बोलते हैं नहीं नहीं भाई इन जो इस सीरीज के लैपटॉप इनमें इश्यू आ रहा है सारे के सारे वापस कर दो, तो वो ऑन बाय हो जाता है स्पेसिफिकली कि इसको ऑन कौन करता है. ठीक है. इसका क्लास बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा? हार्डवेयर जाएगा. ठीक है. लोकेशन, किस लोकेशन पे वो डला हुआ है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा. मान लीजिए मेरी कंपनी में एक IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, और सॉरी मेरी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, IT, HR, फाइनेंस और लीगल. फाइनेंस वालों ने बोला कि भाई हमें 15 लैपटॉप चाहिए, हमारे यहाँ पे 15 एम्प्लॉई हैं बस. देन यू कैन मैप दिस लैपटॉप टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. क्यों? क्योंकि लेटर ऑन यू वांट टू रिकवर द अमाउंट.
ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का यूज बहुत ज्यादा होता है। एसेट फंक्शन ये प्राइमरी है, मतलब ये अब जैसे जो लैपटॉप हमें ऑफिस से मिलते हैं दैट इज प्राइमरी टू मी, ठीक है, लेकिन कई बार वो शेयर्ड भी होते हैं। जैसे मतलब कि उसका जो कॉस्टिंग है वो मल्टीपल तरीके से कवर किया जाता है। 5% एम्प्लॉय से लो, 15% प्रोजेक्ट से लो, 10% डीयू से लो और बाकी बीयू से लो और चार्ज कर लो उसको, तो वो ठीक। एंड लेटर ऑन असाइन, किस दिन मैंने उसको असाइन किया और किस दिन मैंने उसको इंस्टॉल किया, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब हर एसेट का मैंने बोला कि एसेट इज द वन विच कंटेन्स विच हैव सम फाइनेंशियल बाइंडिंग्स। लेट्स गो टू द फाइनेंशियल। फिलहाल के लिए यू फॉरगेट दिस थिंग, रिक्वेस्ट लाइन, इट इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। किस इनवॉइस नंबर से आपने उसको परचेज किया, उसका कॉस्टिंग क्या था, किस वेंडर से वो आया, उसका कॉस्ट सेंटर, किस बिलिंग कोड से आपने उसको चार्ज किया, एक्विजिशन मेथड, परचेज किया है, लीज पे है, रेंटल है या लोन है, एक्सपेंडिचर टाइप, कैपेक्स है या ओपेक्स है। इन शॉर्ट आई नॉट गो इन द डीप डाइव, क्योंकि इफ आई डिस्कस ऑन दीज थिंग्स ना, हर एक का अलग अलग पर्पस है यहाँ पर, ठीक है। द सिंपल पार्ट इज दैट फाइनेंशियल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट फाइनेंस, किससे परचेज किया, किस शॉप से परचेज किया, किस बिल नंबर के अंगेज परचेज किया, किस मेथड से उसको परचेज किया, ठीक है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन क्या आपको किसी सीआई के लिए चाहिए? अगर आप किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं मेरा फ्रिज खराब हो गया है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि सर ये बताओ बिल नंबर कौन सा था, वो ये पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि आपने किससे परचेज किया था, अगर वो वारंटी में है। अगर वो वारंटी में तो वो भी नहीं पूछेगा, हाँ ठीक है सर मैं रिपेयर के लिए आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन सीआई पे नहीं है, देखो सीआई पे नहीं मिलेगी क्योंकि सीआई में काम ही नहीं है, ये सिर्फ एसेट्स पे मिलेगी। नाउ गो टू द डिस्पोजल। डिस्पोजल बोले तो कि कितने टाइम तक मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब मान लीजिए हम जब घर बनाते हैं, घर का लाइफ कितना रहता है नॉर्मली? 25 साल, राइट? 30 साल, मतलब ये कहता है कि हाँ 25-30 साल इज ए गुड, ठीक है। आप फोन ले लीजिए, फोन का लाइफ आजकल कितना है? इफ यू आर सो वेल्दी एंड रिच, आपके लिए शायद 6 महीने होगा, बट इफ यू आर ए मॉडरेट और आप ज्यादा एक्सपेंसिव पसंद नहीं करते फोन पे, तो आप वही फोन 3-4 साल 5 साल चला लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर उसका डिस्पोजल लिखा जाता है कि मैं क्यों डिस्पोजल करना चाहता हूँ। बेनिफिशियरी, किसको बेनिफिट होगा इससे? अगर फोन मैं आज बेचूं या जब मैं फोन 5 साल के बाद बेचूं, उसका कितना कीमत मुझे मिलेगा, कब इसका रिटायरमेंट होगा, शेड्यूल रिटायरमेंट कि भाई 5 साल में रिटायर हो जाएगा, और एक्चुअल रिटायर डेट कि आज मैं इसको रिटायर करने वाला हूं, ठीक है। तो वो चीज है। डेप्रिसिएशन, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे पास घर है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, वो सब डेप्रिशिएट होते हैं, उनकी कीमत हर साल कम होती है। सिंपल सी बात है, एवरीबडी हैज ए कार, राइट? हर साल उसका डेप्रिसिएशन लगता है। बेशक आप एक साल में उसको 5 किलोमीटर चलाओ, लेकिन डेप्रिसिएशन 15% लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली जो आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, ये किनके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है मेरे प्रोक्यूरमेंट टीम के लिए। आप ये सोचो कि अगर आपने एक फ्रिज आज लिया और 10 साल के बाद उसको बेचोगे, तो उसकी उसकी कीमत कितनी होगी? हम तो एक फ्रिज की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज में आईटी डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनके पास एक साल में हजारों लैपटॉप्स वेस्ट हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं, स्क्रीन टूट गई, मॉनिटर नहीं चल रहा है, कीबोर्ड खराब हो गया, लाइफ चली गई है, 15 साल का था, हो गया खत्म, अब नहीं चल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा उसके ऊपर। तो वो सब चीजें वो यहाँ पर डालते हैं। बेसिकली ये फाइनेंशियल्स के लिए यूज किया जाता है। डेप्रिसिएशन कभी सीआई पे नहीं होता, क्योंकि सीआई तो लॉजिकल है मेरा, पहली बात, इसलिए वो एसेट्स पे होता है। देन कॉन्ट्रैक्ट्स, एंटाइटलमेंट,
आई वुड लाइक टू लीव दिस थिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज बहुत डीप डाइव हो जाएगा। एक्टिविटीज जो आपके यहाँ पे नोट्स रहते हैं उसको अपडेट करने के, उसको यूज कर, लॉग्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी clarification required till this point? No, Atul. No, sir. Atul, so Yes, Dipesh. this is completely different table, right? Where you're maintaining the assets, See, it is LLM hardware table. right? And if you see, if I go here, if you right click here, see the configure label or configure dictionary. Let me say configure dictionary. Okay, configure dictionary. Let me show you something. See, जो कॉन्फ़िगर डिक्शनरी ये है आपका, ये जो हमने फील्ड पिकअप किया एसेट का, डेप्रिसिएशन का, वो एक्चुअल में एसेट के टेबल से आ रहा है। Okay. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एएलएम हार्डवेयर, वो एसेट के टेबल से आ रहा है उठ के, लेकिन शो मुझे हार्डवेयर के टेबल पे हो रहा है। इट मींस इफ आई कम टू दिस प्लेस, लेट मी ओपन दिस, इट मींस जो फील्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे फील्ड एक ही टेबल से आ रहे हैं। वो सारे फील्ड अलग अलग टेबल से हो सकते हैं। जैसे एसेट टैग है, शो एसेट टैग, देखो ये एसेट टैग का टेबल है, एएलएम एसेट स्ट्रिंग है, और ये, और देखो इसका ये आ किस टेबल में रहा है, एएलएम हार्डवेयर में, राइट। सो इफ यू राइट क्लिक हियर, यू आर इजीली कम टू नो दैट ये कौन से टेबल से आ रहा है। ये भी एएलएम एसेट से आ रहा है, मॉडल कैटेगरी रेफरेंस है ये, और रेफरेंस कहां से ले, देखो ये एलएम टेबल्स पे शो कर रहा है, एसेट मतलब एसेट टेबल से रहा है, शो कर रहा है हार्डवेयर टेबल के ऊपर, और रेफरेंस कहां से पिकअप कर रहा है, मॉडल से, सीएमडीबी के मॉडल से पिकअप करके लेके आ रहा है। सो डिक्शनरी है एलएम हार्डवेयर डॉट मॉडल कैटेगरी। ओके, एज ए ओपन दिस, जो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट, बीच में दिख रहा है ना, ये एलएम अंडरस्कोर हार्डवेयर डॉट मॉडल अंडरस्कोर कैटेगरी, यस और नो? Yes. Yes, Atul. एवरीवन से पहले यस। Yes, sir. ओके, इस डॉट को सर्विस नाउ में हम कहते हैं डॉट वॉकिंग। इफ यू पुट अ डॉट, यू कैन गो टू द अनदर टेबल एंड उस टेबल का कोई एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एएलएम हार्डवेयर जो एक्चुअल टेबल है, उसने क्या किया, उसने डॉट वॉकिंग किया, किसके साथ, एएलएम एसेट टेबल के साथ डॉट वॉकिंग किया, और उसके अंदर उसने एक फील्ड ढूंढा, सीएमडीबी मॉडल कैटेगरी, उसको पिकअप करके लेके आया। डॉट वॉकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब डॉट वॉकिंग का इन शॉर्ट मतलब क्या रहता है कि आप एक टेबल में हैं और आप दूसरी टेबल के किसी एट्रीब्यूट्स को लेके जाना चाहते हैं। मतलब कि मेरी फैमिली में अगर मैं हूं और मैं अपने नानी के घर, दादी के घर, नानी के घर जाना चाहता हूं, सो आई विल पुट माय नेम डॉट माय मदर नेम डॉट, मैं अपने नानी के घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि नानी का रिलेशनशिप बनाने के लिए मदर इज द another table in between, so I am doing that dot walking, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट, हाँ बोलिए। Right. So, but if you want to do that, I mean, your granny, so you will be the reference. Similarly, यहाँ पे भी कुछ reference होगा. रेफरेंस होगा डेफिनेटली। सो देखो, आप इस रेफरेंस से कंफ्यूज मत होना, ये रेफरेंस आपका फील्ड का डेटा टाइप है। Okay. ये रेफरेंस आपका टेबल का नहीं है, ये रेफरेंस आपका फील्ड का डेटा टाइप है। मतलब रेफरेंस डेटा फील्ड क्या होता है कि एक टेबल जो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसकी वैल्यू को लेके आ रहे हो। लेट मी शो यू, जैसे लोकेशन है, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस फील्ड है,
लोकेशन और एसेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये रेफरेंस है, ये चॉइस है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ है मेरे इसमें। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके देखो, शो लोकेशन, सीएमएल लोकेशन करके दिखाएगा, देखो ये रहा सीएमएल लोकेशन। लेकिन अगर मैं आपको एसेट फंक्शन दिखाऊं, देखो ये चॉइस दिखा रहा है। मतलब ये डॉट वर्क इन बेसिकली उल्टा चलता है ना, लाइक नहीं, फ्रॉम लोकेशन टू स्टेट, स्टेट टू सिटी, ऐसा हो ये जाता है डॉट वर्क। नहीं, ये डिपेंड करता है एक्चुअली। देखो अगर मैं इसको डॉट वर्किंग कर समझाऊं, तो एएलएम हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, ये जो मेरी टेबल है एएलएम हार्डवेयर, उसके अंदर एक टेबल है एएलएम एसेट, उसका एक एट्रीब्यूट है एसेट फंक्शन। तो मैंने इसको डॉट वॉक करके यहां लेके आया हूं मैं। ठीक, मैं आपको एक, रुको, एक स्लश बकेट लेके चलते हैं। रुको, इंसिडेंट का टेबल ओपन करें। क्या करें, असाइनमेंट ग्रुप नहीं, रुको फॉर्म लेआउट पे चलते हैं इसकी। हाँ, लोकेशन ही लीजिए, आई थिंक दैट विल बी बेटर। हाँ, इसके रुको, एसेट के फॉर्म लेआउट पे चलते हैं। अब देखो, जैसे यूजर टेबल है मेरी, राइट, देखो जितने भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये सारे, ये सारे के सारे मेरे डॉट वॉकिंग पे चलेंगे, क्योंकि ये खुद में अलग से टेबल है। करेक्ट। और इन सबको मैं यूज कर रहा हूं अपने हार्डवेयर टेबल के ऊपर। असाइन टू, इफ आई क्लिक हियर एंड आई एक्सपेंड इट, देखो असाइन टू के सारे फील्ड खुल जाएंगे। बिजनेस फोन, इफ आई क्लिक ऑन दिस, सी असाइन टू डॉट बिजनेस, मतलब ये जो बिजनेस फोन है, ये मैंने असाइन टू वाले टेबल से पिकअप करके लेके आया हूं मैं। और इफ आई क्लिक ऑन दिस, हाँ हार्डवेयर पे ना, ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये देखो ये रहा, एंड नाउ आई शो यू हियर, शो फोन, देखो एलएम असाइन टू डॉट फोन, मतलब उसने एक और रेफरेंस बढ़ा दिया आगे। असाइन टू में फोन टेबल पे चले जाओ, ये ये डॉट वर्किंग होता है मेरा। मतलब कि ए से बी, बी से सी, तो डॉट लगा के जाओ। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल पूछा, मेरे मामा से मेरा क्या रिलेशनशिप है, उसको अगर मैं डॉट वॉकिंग करूं तो क्या, फर्स्ट आई विल बी देयर, देन डॉट माई मदर का नाम, डॉट उनके ब्रदर इज इक्वल टू मेरे मामा, राइट। विदाउट मॉम, विदाउट मामा नहीं हो सकते, राइट, दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब डॉट वॉकिंग करके मैं वहां तक पहुंचा। इफ आई वांट टू नो माई मामा के बच्चे, तो पुट डॉट मामा डॉट उनके बच्चे जो है, या उनकी वाइफ जो है, ठीक। ये डॉट वॉकिंग आपका टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। मतलब अगर आप किसी फील्ड को लेके आना चाहते हैं अपने इसके ऊपर, उसके लिए होता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज अगेन माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, कोई भी टेबल सर्विस नाउ में ऐसी नहीं है जिसके खुद के सारे फील्ड हो। टेबल्स में जितने फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी और टेबल से उठ के आए हुए हैं, ठीक है। और यही काम होता है आर्किटेक्ट का एक्चुअली में, कि जितने भी मेरे सिस्टम के टेबल्स हैं, जितनी मेरी सर्विस नाउ के टेबल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके कस्टमर का प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना, नए टेबल्स ना बनाना, नए फील्ड्स ना बनाना, ठीक है जी। One more question, okay. So let's say I'm trying to import certain data now into from XML, let's say Excel sheet or anything. So transform map banana tough हो जाएगा क्या? Like if we have multiple tables to map them. नहीं ना, टफ क्यों होगा? देखो, अगर
टफ नहीं होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली सर्विस नाउ के लिए इस टेबल में सारे फील्ड्स दिखा रहे हैं, लॉजिकली उसने यहाँ दिखा दिए मुझे, ओके राइट? प्रैक्टिकली कैसे स्टोर है मुझे नहीं पता। अगर मैं एग्जांपल लूं, जब हम छोटे थे तो सीडीज यूज करते थे, फ्लॉपी यूज करते थे, राइट? क्या आपको पता है कि जो फाइल आप डाल रहे हो वो फ्लॉपी के किस कॉर्नर में जा रही है? नो। लेकिन जैसे आप फ्लॉपी इंसर्ट करते थे अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप में, आपको फाइल दिख जाती थी। करेक्ट, दैट्स राइट। तो वो क्या है, वो लॉजिकली उन्होंने पीछे से बाइंडिंग कर रखी है, और आपको देखने के लिए उन्होंने एक फ्रंट एंड दी कि बस आप जब भी देखोगे आपको ऐसी फाइल दिखेगी आपको। गॉट इट। कुछ वो स्कीमा मैप में दे हैव प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड। एग्जैक्टली राइट, यही तो डेवलपमेंट है सारी, बैकग्राउंड, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस, ठीक है, सो वो चीजें हैं, आप ट्राई करके देखो नारायण, एक ट्रांसफॉर्मर बना के देखो एलएम हार्डवेयर पे, सिर्फ ये 5 वैल्यू डाल के देखो जाती कि नहीं जाती। श्योर, आई विल डू दैट। ठीक है, हो सकता है शायद मेरा आंसर गलत भी हो, फाइनेंशियल्स के लिए आपको फाइनेंस की टेबल्स ही यूज करनी पड़े, बट वी कैन ट्राई दिस। श्योर। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? ईश्वरी, शिल्पी, तेजल? नो सर। अरे नो सर वाला नहीं ना, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। ईश्वरी, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं। शिल्पी, डाउट? When you are doing Atul, everything looks easy. When we start doing it, that is when the problem is. Absolutely. Yesterday I was trying to create a computer wala asset. It was tough. Then I figured it out. No, you are Same. I see, copied from him, but Uma, your words are wrong. You're trying to create a asset, but मैंने बोला था you try to create a CI first, then asset will be created automatically. Correct. okay. ठीक है, उसमें ठीक है। Now the question come, see CMDB में समझने वाला बहुत कुछ है, करने वाला कुछ नहीं है ज्यादा। करने वाला सिर्फ आधे 2 घंटे का काम है कि भाई बना के देखा, प्रैक्टिस हो गई, हो जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम, अब देखो हमें ये चीज, और did you guys notice that for today's session specifically I'm not using much the English, I'm going in the Hindi, क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को वो। ठीक है, अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो एसेट, जो CI है दैट इज अ लॉजिकल, और जो एसेट है वो एक्चुअल में एक फिजिकल एंटिटी है। ठीक है, अगर मैं कुछ अपने एसेट में चेंज करूंगा, कोई एट्रीब्यूट अगर मैं अपने एसेट का चेंज करूंगा, तो वो CI में जाके अपडेट होना चाहिए, पहली बात। अगर मैं एसेट की स्टेट चेंज करूंगा तो वो CI को भी इंपैक्ट करना चाहिए, दूसरी बात। और अगर मैं एसेट के मतलब जो हार्डवेयर है उसके स्टेटस में कुछ चेंज करूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं CI को इंपैक्ट करना चाहिए, तीसरी बात। मतलब मान लो अगर आपका सर्वर ही चोरी हो गया, ठीक है, आपका फोन छोड़ो, वो तो गलत काम हो जाएगा, ये तो कोई ऐसी चीज जो आपके घर में थी, जो कोई एसेट आपकी थी, वो चोरी हो गई, तो क्या उसका लॉजिकल एग्जिस्टेंस रहेगा? भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्या वो एक्चुअल वर्किंग स्टेट में है? नहीं होगा वो। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम कि अतुल आपने तो बोला मैंने एसेट टैग यहाँ चेंज किया, या मैंने यहाँ चेंज कंप्यूटर में चेंज किया था और वो यहाँ जाके इंपैक्ट हो गया, बट डिड यू गाइस नोटिस दिस थिंग कि आखिर वो हो कैसे रहे? बैकग्राउंड में कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना कि अगर मैं एसेट यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, लेट मी चेंज माय एसेट हियर नाउ, ठीक है, एंड लेट मी सेव दिस, सॉरी आई एम चेंजिंग माय CI, ठीक है, एंड लेट मी सी। नंबर 1 की एसेट का पूरा टैग चेंज हो गया, इसको ऐसे शो करते हैं आराम से, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको सेव किया मैंने, पहली बात ये सब चेंज हो गया। दूसरी बात, इसको इसकी एसेट ओपन करके देखते हैं, जाते हैं, लेट मी क्लोज ऑल अदर थिंग्स।
ठीक है, यहाँ पर भी इसका एसेट टैग चेंज हो गया। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ CMDB। ठीक है, ये मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे, ये लोग कहीं बताते भी नहीं है ये लोग, और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएंगी। गो हियर एंड टाइप एसेट, स्क्रॉल डाउन एंड कम टू एडमिन। ये रहा, यहां पर 3 अलग अलग मॉड्यूल्स बने हैं। एसेट CI फील्ड मैपिंग नंबर 1। मैंने आपको बोला ना कि ये 3 जो टैब्स बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये मैंने अपने पर्पस के लिए बनाया है, R&D करा था कुछ तो उसको देखने के लिए। इफ यू गो टू योर पर्सनल इंस्टेंस या आप अपने कंपनी के इंस्टेंस में जाके किसी CI को ओपन करेंगे, आपको 3 टैब्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो पहला टेबल क्या है, एसेट और CI फील्ड मैपिंग। लेट मी ओपन दिस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है? पहली बात, इस टेबल का नाम क्या है, ALM एसेट CI फील्ड मैपिंग। मतलब कि आइदर आई एम अ सन और आइदर आई एम अ फादर, मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स सेम रहेंगे दोनों केसेस में। इफ आई एम फिलिंग ए फॉर्म फॉर माई किड, तो मेरा जो आधार कार्ड का नंबर है वो, और अगर मैं अपने एडमिशन के लिए या मेरे फादर मेरे एडमिशन के लिए, मेरे कुछ फाइनेंस के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी मेरा आधार कार्ड नंबर सेम रहेगा। नंबर 1, अगर मैं अपने आधार कार्ड के नंबर में चेंज करता हूं तो वो दोनों जगह इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सो उसी तरह से सर्विस नाउ ने कहा कि बॉस, आई एम गिविंग यू टॉप 30 फील्ड्स जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, एसेट टैग आपको दोनों में मिलेगा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, असाइंड कहां गया, ये रहा, और यहां पे मुझे लेके आना पड़ेगा, फील्ड लेवल पे लेके आना पड़ेगा, मतलब फॉर्म लेवल पे लेके आना पड़ेगा। लेट मी ब्रिंग इट। I want to prepare a complete end-to-end video on the CMDB actually. अरे हो जा भाई ओपन। ठीक है, चलो इतने में ये ओपन होता है, हम ओके हो गया। साइन देखो ये रहा। ठीक है, और क्या है, असाइन टू चेक इन चेकआउट। इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने, एक मिनट रुको, इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग एसेट एंड CI फील्ड मैपिंग। इसके लिए मैंने अलग से टैब ही बना दिया कि भाई सारी चीजें यहाँ शो करूंगा तो इजी रहेगा मुझे शो करने के लिए। लेट मी डू दिस थिंग्स हियर ओनली। फॉर्म लेआउट, हो जा भाई, हाँ ओके। लेट मी गो टू माय सेक्शन। कौन सा था, ये रहा, फील्ड मैपिंग, नॉट ये रहा। ठीक है, लेट मी ब्रिंग असाइंड, कि भाई असाइंड, और अरे नहीं यार, ये रहा असाइंड। ठीक है, चेक इन चेकआउट। ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग सम एग्जांपल्स। कंपनी, आई गेस ऑलरेडी एडिड होगा किसी उसमें, इसलिए वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, कंपनी एडिड है हमारा इसमें, कंप्यूटर वाले जो व्यू है उसमें। ठीक है, ये देखते हैं, इंस्टॉल डेट, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर, इंस्टॉल डेट, वो भी ऑलरेडी कहीं गया हुआ ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा वो। ठीक है, लेट मी कम डाउन।
चलो काफी, और सीरियल नंबर हमारे पास है, लेट मी सेव दिस। ठीक है, सो ये जो टेबल है आपकी, उसमें अगर आप, मैं यहाँ पर भी आपको और चीजें लेके आता हूँ, कुछ बचा हुआ है यहाँ पे। नहीं, आई गेस सब फील्ड्स आ गए हैं, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है इसको लोड होने में भी। अरे हाँ, ये देखो, ये सारे आ गए मेरे यहाँ पे, राइट। असाइन टू चेक इन, चेकआउट, इनवॉइस नंबर, लेट मी ब्रिंग दिस एज वेल। जो इसकी बाकी फील्ड हैं वो लेके आते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, क्लास लिख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, जस्ट टू शो यू। ठीक है, डिस्प्ले नेम ले लेते हैं, काफी है। ओके, अब वो क्या कह रहा है, इफ यू थिंक हियर, वो ये कह रहा है कि अगर आप एसेट में कुछ चेंज करोगे, इफ यू गो एंड चेंज समथिंग हियर विद रिस्पेक्ट टू दीज फील्ड्स, वो सारे के सारे सीआई को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन बात ये आती है कि अतुल ऐसे कैसे होगा, एक टेबल में अगर मैंने लिख दिया, इसका मतलब थोड़ा ना कि सब कुछ हो जाएगा, राइट? है ना भाई, कुछ तो लॉजिक होगा ना। इफ आई अपडेट माई असाइंड, अगर मैं एसेट में जाके असाइंड आज की डेट डाल देता हूं, ठीक है, और इसको सेव करता हूं, रीलोड माई फॉर्म, ये देखो डेट आ गई यहाँ पे। सो कुछ तो लॉजिक बैकग्राउंड में होगा इसका डेफिनेटली, सिर्फ टेबल में मैपिंग करने से तो कुछ नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैपिंग है, और भी मैपिंग आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग कि इसका वो एक दो ऑप्शन और भी होते हैं इसके। Put all these things here. ठीक है, सो ये जो मैपिंग हो रही है ना आपकी, हाँ, एसेट सीआई एडमिन ग्लोबल ट्रू 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 एडमिन, ठीक है, कुछ नहीं है। ये जो मैपिंग देखो, हमने यहाँ पर असाइन टू चेंज किया, असाइन डेट चेंज किया, और यहाँ पर वो अपडेट हो गया। डेफिनेटली उसने यहाँ से कुछ तो पिकअप किया होगा, ठीक है। लेकिन इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक बिजनेस रूल भी रन हुआ होगा। लेट मी शो दैट। उधर ही क्लिक कीजिए अतुल, ये कंप्यूटर का जो टॉप पे राइट क्लिक करो, यहाँ से टॉप पे टैप कर सकते हो। अच्छा, उस ओके ओके इधर, ओके, तो Business, ऑल right? करो, ऑल, हाँ, बिजनेस I don't want to miss this particular page actually, इसलिए मैं यहाँ जा रहा था। उधर टू फाइंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, लो मैं ट्राई करता हूँ, अगर नेक्स्ट पेज पे खुल जाए। ऑन ही कर दो, ये देखो, सो उस पर्टिकुलर फॉर्म पे ये सारे के सारे मेरे बिजनेस रूल रन होते हैं। बिजनेस रूल्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, अभी मैंने पिकअप नहीं किया क्योंकि उसमें मेरे पास एक्चुअली प्रैक्टिकल समझाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल बता सकता हूँ मैं उसमें आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें वैल्यू अपडेट हुई है। वर्चुअल कंप्यूटर चेक पॉपुलेट सीआई मैन्युफैक्चर आउटसाइड मूव डेटा एसेट क्रिएट एसेट ऑन इंसर्ट एसेट मॉडल, मे बी सीएमडीबी सिंक इवेंट कुछ होगा। यस दिस इज द मेन बिजनेस रूल। ये देखो, ये एक रूल है, मतलब कि एक कोड चला बैकग्राउंड में, जिसने क्या किया, अगर मैं आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, ये मैंने यहाँ पर एक वैल्यू चेंज की और इसको सेव किया। ठीक है, इसको सेव किया, इसके सेव करने के बाद ये एक बिजनेस रूल चला। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस बिजनेस रूल ने इस टेबल में जाके देखा कि भाई जो फील्ड मैंने एसेट पे चेंज किया है, क्या उसकी मैपिंग यहाँ पर है। अगर मैपिंग है तो जाके मेरे इस पर्टिकुलर जो मेरी सीआई है उसको भी चेंज कर दो। लेट मी ओपन अ सीआई इन दिस विंडो। ठीक है, और उसने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया मेरा। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना है इसका, ठीक है, तो इसके एक्शंस में देखना पड़ेगा, एडवांस में रहेगा आई गेस। हाँ, ये देखो, ये रहा। प्योर कोड मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मुझे उसमें शर्म नहीं है बताने में, ये प्योर कोडिंग में है।
ठीक है, वो चीज। बट बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट, यू कैन टेल दिस थिंग टू योर कस्टमर कि बॉस अगर आप एसेट्स में कुछ चेंज करोगे, कुछ गिने हुए फील्ड्स में चेंज करोगे, दैट विल चेंज योर CI एज वेल, आपके यहां पर भी चेंज हो जाएगा। देखो ये वाइस वर्सा नहीं है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि CI में किसी को असाइन नहीं कर रहा, मैं एसेट असाइन कर रहा हूं किसी को, राइट? आया ना? यस। ठीक है, तो नंबर एक आपको ये चीजें समझनी है, और ये सारी की सारी वन वे है आई गेस, नॉट द टू वे, जहां तक मुझे लगता है। आई एम जस्ट चेकिंग वन फील्ड है जो बताता है ट्रू एंड फॉल्स की दोनों साइड रहेगा या वन वे रहेगा। नहीं है शायद, आई कुछ, लेट मी क्लिक ऑन द, अच्छा सॉरी, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, वो मान लीजिए मेरे को कुछ नया ऐड करना है। एसेट फील्ड में क्या है, मैंने कहा एसेट फील्ड में आप डालो कॉस्ट, कॉन्फ़िगरेशन फील्ड में क्या डालो, कॉस्ट। मतलब अगर मैं यहां चेंज करूं तो यहां चेंज होना चाहिए। लेट मी सेव दिस। बस इतना ही है इसमें। अगर इसका एडवांस व्यू देखना है, क्लिक ऑन दिस, मैपिंग कंडीशंस आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, या हमें काम क्या करते हैं, वेट, बैक करते हैं इसको, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था ये। बहुत कंफ्यूजिंग है ना? कोई नहीं बोलेगा? हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। ठीक है, ये देखो, लेट मी ओपन दिस असाइन टू, देखिए इसका मैपिंग उसने क्या कुछ किया है, क्या लिखा है इसके अंदर। नथिंग दे मेंशन, असाइन टू को असाइन टू से मैप कर दो, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द माय बिजनेस रूल। ठीक है, ये बेसिकली आई गेस रिलेशनशिप के लिए है, हाँ, ये शायद नहीं है। बट नीड टू बी चेक, मतलब ये है बिजनेस रूल यस। एसेट्स, अदरवाइज आई नीड टू गो एंड यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ऑल करेंगे तो शायद मिल जाएगा, आई एम श्योर। सर्च करते हैं ऐसे, एसेट रिटायरमेंट, let's see I guess. ये 47, इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है हमारा, पॉसिबली हमारा कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसको और अगर करना चाहें तो इसको हम CMDB कर देते हैं। नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, सो ये पार्ट समझ में आया, कहाँ गया हमारा ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? आया ना? यस। Yes, sir. हो गया ना क्लियर ये? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। ठीक, इतना इसलिए है क्योंकि आज आपको वो सारा पढ़ना है जो हमने 2 दिन में पढ़ा लास्ट में, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक। आज आपको एसेट्स का पढ़ना है, एसेट्स क्या है, एसेट स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है, एसेट और CI का मैपिंग है, ये टेबल आपको पढ़ना है, ALM एसेट CI फील्ड मैपिंग, तभी आपको पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे काम हो रहा है। बैकग्राउंड में मत जाना कि अतुल कौन सा कोड लिखा हुआ है, कैसे हो रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बॉस ये एक फील्ड है जहां पर एक काम होता है मेरा। क्लियर? ईश्वरी, तेजल, Yes, sir. ईश्वरी, क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है सर। पक्का ना?
हाँ सर। ठीक है फिर लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट.